Hello everyone. I hope everyone is doing good. Very good. Perfect. So let us continue. Last lecture में we guys were discussing about some standard functions. ऐसे functions जो हम frequently encounter करते हैं और जिनकी we can call them standard functions because उनकी standard definitions हमको आनी ही चाहिए. So we discussed functions like modulus of x, greatest integer function of x, fractional part of x, least integer function of x, sin x, cos x, inverse trigonometric functions. हमने काफी टाइप के functions देख लिए. Now today we are going to start a very and I'll specially emphasize a really important concept of functions, which is inverse of a functions. So let us today discuss about inverse of a function. Now, before discussing about inverse of a function, first let us go back to a discussion about inverse of a relation. पहले हम हमारे relation के lecture में वापस से जाते हैं जहाँ पे हमने inverse of a relation के बारे में समझा था. क्या कोई बताएगा inverse of a relation हमने कैसे define किया था? हमने कहा था अगर एक relation है which consists of ordered pair A, B such that A belongs to A and B belongs to our set B, and this relation R is a relation from set A to set B. तो हमने कहा था inverse of this relation denoted by R inverse will be defined from set B to set A, and it is going to be collection of ordered pair B comma A such that A comma B belongs to R. True? This was the definition that we guys defined for inverse of a relation. यहाँ तक सही है और इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाए और मैं कहूँ कि अगर एक रिलेशन है which consists of ordered pair 1, 2, let us say 2, 3 and 3, 4, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? देखिए सिंपल सा रूल था कि अगर A, B R में आता है तो B, A को R इनवर्स में आना चाहिए, which means R inverse would be 2, 1, 3, 2 and 4, 3. Perfect. So this was the discussion we had about inverse of a relation. True? और अगर इसे सेट डायग्राम में देखा जाए तो अगर मैं कहूँ ये हमारा सेट A, ये सेट B और इस रिलेशन R को डिफाइन करना चाहूँ तो डोमेन है 1, 2, 3 और लेट अस से रेंज है 2, 3, 4. तो ये रिलेशन कुछ ऐसा है. ट्रू? दिस इज R और इस केस में R इनवर्स क्या होने वाला है? ऐसा. टू, 3, 4. ट्रू? So this is R inverse. Okay. This is all related to inverse of a relation. अभी हमने function के बारे में तो कुछ discussion किया ही नहीं है. हम अभी function के super set relation के बारे में discuss कर रहे हैं. ठीक है? हमने starting से एक चीज समझी है. Function is a special type of a relation. So right now we are discussing about inverse of a relation. Then we will be discussing about inverse of a function. True? Okay. So this is what we know about inverse of a relation. अगर एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पेयर ए बी है तो B, A की सारी ऑर्डर पेयर का कलेक्शन हो जाता है हमारा R इनवर्स. ठीक है? या फिर कहूँ जो मैपिंग सेट A से सेट B की तरफ है उसे मैं सेट B से सेट A की तरफ कर दूं तो ये हो गया हमारा इनवर्स ऑफ अ रिलेशन. अब बात करते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की. इससे पहले एक और पॉइंट देख लीजिए. हम जानते हैं एक रिलेशन का इनवर्स भी एक रिलेशन होता है. ट्रू? करेक्ट? So when I talk about inverse of a function, one thing I have to make sure of that inverse of a function is also a function. एक function का inverse भी function ही हो, ये जरूरी है. We understand this, okay? अगर relation का inverse relation है तो function का inverse भी एक function हो. इसे इस तरीके से समझिए. हम वापस से हमारे magic box वाले example को लेते हैं. ठीक है? मैं कहूँ कि अगर मैं मैजिक बॉक्स में देती हूँ x और मुझे मिलता है ट्वाइस ऑफ x
तो अब मैं चाहती हूं कि एक मैजिक बॉक्स ऐसा भी हो जो इस मैजिक के असर को हटा दे. ओके, दिस इज माय मैजिक बॉक्स. ओके, देयर इज सम मैजिक हैपनिंग ओवर हियर which converts a number to twice of its number. Okay, x को twice of x में convert कर देता है. लेकिन अब मैं चाहती हूँ I don't want this magic, I want my number back. मैं चाहती हूँ कि इस मैजिक के इफेक्ट को someone remove, someone just disappears this magic. This magic should disappear. Okay, so I develop one more magic box and I call it magic inverse or inverse of magic. यहाँ जो मैजिक होता है यहाँ वो मैजिक हटा दिया जाता है. Okay, so this is inverse of magic. Okay, what is happening in this magic box is some magic is happening which is duplicating a number. एक नंबर को उसका डबल कर देता है. Okay, this is the magic. I now don't want this magic. मैं इस मैजिक से परेशान हूँ. I cannot handle such a big number, so I want my number back. Okay, so I have developed one more box that disappears this magic, that removes this magic, eliminates it completely. इसमें आके वो मैजिक का पूरा उल्टा असर हो जाता है और नंबर वापस आ जाता है. तो अब इस मैजिक बॉक्स से मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर मैं इसे ट्वाइस ऑफ x दूं तो मुझे ये मैजिक बॉक्स x दे दे. ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये एक फंक्शन है तो ये भी एक फंक्शन होगा. समझिए क्यों? क्योंकि ये x के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट दे रहा है 2x. ठीक है, इस x के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है 2x. तो मैं चाहती हूँ इस 2x के करस्पॉन्डिंग में मुझे एक यूनिक आउटपुट x ही मिले. तो इसलिए अगर ये फंक्शन है तो इसका फंक्शन होना भी बहुत आवश्यक है. समझ पा रहे हैं? समझिए ना, अगर इस x के करस्पॉन्डिंग मुझे एक 2x मिलता है तो मैं चाहती हूँ कि इस 2x के करस्पॉन्डिंग मुझे एक x तो मिले, है कि नहीं? अगर किसी चीज में मैजिक होके कुछ बना है तो मैजिक रिमूव होके भी तो मुझे वही सेम चीज वापस मिलनी चाहिए ना. x से अगर 2x मिला तो 2x से मुझे x ही मिलना चाहिए. ट्रू. सो नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. सो अगर मैं कहूं ये मैजिक है हमारा फंक्शन y equals to 2x. ट्रू. सो दिस इज माय फंक्शन x equals to y by 2. सही है कि नहीं? अगर ये मैजिक नंबर एक ऐसा फंक्शन है जो नंबर को डबल करता है तो ये मैजिक एक ऐसा फंक्शन है जो उस फंक्शन को, उस नंबर को हाफ कर देता है. तो अगर मैं कहूं इसे f of x equals to twice x, so this is my another function g of y equals to y by 2. Okay, still I haven't defined the concept of inverse of a function. मैं सिर्फ आपको उस चीज का रियलाइजेशन लाने की कोशिश कर रही हूँ अभी. ओके, अंडरस्टैंड? सो वी हैवंट येट इंट्रोड्यूस्ड अ फॉर्मल डेफिनेशन और द कंडीशंस फॉर अ फंक्शन. वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि एक इनवर्स ऑफ अ फंक्शन से हम क्या समझ सकते हैं. सो इज दिस क्लियर? परफेक्टली क्लियर. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. ओके, एक और बात, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन इनवर्स ऑफ अ रिलेशन पे अप्लाई होती है ना, वही मैथमेटिकल डेफिनेशन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पे अप्लाई होगी. रीजन बीइंग सिंपल कि फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है. देयर इज नथिंग डिफरेंट. फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन विद सम कंडीशंस बट इट इज अ रिलेशन. सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की रिलेशन की जो डेफिनेशन है वही इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पे भी अप्लाई होती है. ओके, नाउ लेट अस सी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. आई एम जस्ट इरेजिंग दिस साइड ऑफ द ब्लैकबोर्ड राइट नाउ. लेट अस से मेरे पास एक फंक्शन है f of x. Okay, and this function is from set a to b. Okay, set a is 1 2 3 and set b is a b c d and e. ओके, जो फंक्शन है वो है 1, a 1, 2, a and 3, c. ठीक है, तो
let me say what is going to be the inverse of this function x. ओके ये एक और काम करते हैं, इनवर्स डिफाइन करने से पहले इसे सेट डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये है a और ये है b, 1 2 3 a b c d e, 1a and 2a and 3c. This is my function f of x. अब मुझे बताइए, is f of x satisfying all the conditions of being a function? देखते हैं। First condition है every element in the domain must be mapped to a unique element in set P. Okay, so that is happening. True, and that is the only condition. Every element must be mapped to a unique element. True, so that is the condition that is happening. And एक भी element की दो images नहीं है, so this is a function. We understand this. और अगर दूसरे तरीके में बात करूं तो all the first element of for all the ordered pairs, कोई भी ऐसी ordered pair नहीं exist करती जिसमें first element same हो, ठीक है। And domain is the complete set A, so this is a function. We understand this. Okay, now एक और चीज बता दीजिए, it is a many one function या फिर मैं कहूँ it is not a one one function, और ये फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं है। वन वन क्यों नहीं है कि 1a और 2a एग्जिस्ट करता है, और सर्जेक्टिव क्यों नहीं है क्योंकि b और e एम्प्टी है। सो इट इज नीदर अ वन वन फंक्शन, नीदर इट इज अ ऑन टू फंक्शन. लेट मी कॉल इट ऑन टू फॉर नाउ. Okay, now this is we have talked about f of x. Now let us try to define f inverse x. Exist करता है या नहीं ये तो बात की बात है. Let us try to define. So as per my rule, अगर as per the definition of inverse of a relation, okay, अगर a comma b ordered pair relation में exist करती तो उसके inverse में b comma a ordered pair exist करनी चाहिए, which means either has to be a comma 1, a comma 2 and c comma 3. okay, अब इस चीज को हम सेट डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए हम सेट B से A बात करेंगे बिकॉज दिस F इनवर्स वुड बी डिफाइंड फ्रॉम B टू A. ठीक है, सो वी हैव A, B, C, D here and we have 1, 2, 3 here. A1, A2 and C3. Now अब देखिए क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, A is mapped to two elements in set B. A does not have a unique image in set B. A is having two images, A1 and A2. First condition violated. Second, डोमेन के कुछ एलिमेंट्स खाली है. नॉट ऑल द एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव अ इमेज इन सेट B. ओके, इन द नेक्स्ट सेट. सो दोनों कंडीशंस वायलेटेड है. न तो एक ही यूनिक एलिमेंट है और न ही डोमेन के सारे एलिमेंट्स कवर्ड है. सो वेरी क्लियरली दिस F इनवर्स X इज नॉट अ फंक्शन. दिस इज नॉट अ फंक्शन. और हम ऑलरेडी जानते हैं that inverse of a function has to be a function only, which means this function f of x cannot have an inverse. For this function we cannot define an inverse. क्यों? क्योंकि जब हम इसका इनवर्स डिफाइन करने जा रहे हैं तो वो तो अपने आप में फंक्शन है ही नहीं. ऐसा क्यों हो रहा है ये अब हम थोड़ी देर से एनालाइज करेंगे, बट जस्ट ऑब्जर्व दिस सिचुएशन. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. टेक दिस एग्जांपल. ओके, नाउ लेट अस से वी हैव अ फंक्शन f of x which is a1, b2
and C3. Okay, this function f of x is defined from set A to B. A is A, B, C and set B is 1, 2, 3. Okay, so सेट डायग्राम में f of x कैसे रिप्रेजेंट होगा? A, B, A, B, C, परफेक्ट, क्लियर है? So this is my function f of x. One thing I must observe here, मेरा ये फंक्शन f of x है, ये 1:1 है इस वक्त, because if a is equals to b, if a is equals to b, this is only possible, this implies f of a would be equals to f of b, और ऐसे if f of a is equals to f of b, this will implies a equals to b, क्योंकि हर एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैप्ड है, या फिर मैं ऐसे कहूँ सेट b की सिर्फ एक ही प्री इमेज है सेट a में. ओके, तो दिस इज 1, 1 एंड दिस इज ऑन 2. ऑन 2 क्यों है? क्योंकि रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के इक्वल है. ठीक है, अब मैं f इनवर्स x डिफाइन करती हूँ. सो f इनवर्स x होने वाला है 1, a, 2, b and 3, c. And this has to be defined from set B to set A. True. अगर इसका सेट डायग्राम बनाऊं, तो this is my set B, this is my set A. This guy is here 1, 2, 3, A, B, C. And very clearly, each element of set B is mapped to a unique element in set A. So this implies this is a function. So for this guy over here, inverse exists. ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए. This was a many one and a non-surjective function. This was a 1, 1 and a surjective function. इसमें समस्याएं क्या थी? ये फंक्शन क्यों नहीं बन पा रहा था? सी, बिकॉज दिस वॉज अ मेनी वन फंक्शन, 1 और 2 की एक ही इमेज थी A में. तो जब मैंने इसे उल्टा किया, जब मैंने इस मैपिंग को B से A की तरफ किया, तो क्या हुआ? A की 2 इमेजेस होने लगी अब 1 और 2, विच इज नॉट पॉसिबल. सो अगर फंक्शन मेनी वन होता है तो क्या समस्या आती है कि जब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, सो at least one element would be there which does not have a unique element, which does not have a unique image in set B. एक और बार समझाओ. देखिए यहाँ पे क्या समस्या थी कि 1 और 2 की सेम इमेज थी A. तो जब मैंने इसे इनवर्स किया, मैं इसे B to A डिफाइन करने गई, तो क्या होने लगा? A की 2 इमेज होने लगी 1 और 2, जो कि फंक्शन की कंडीशन को वायलेट करती है. Which means अगर कभी भी फंक्शन मेनी वन हुआ तो ये कंडीशन अराइज होगी. मतलब अगर फंक्शन मेनी इज टू 1 है तो हम उसका इनवर्स डिफाइन कर ही नहीं सकते. इज दैट ट्रू? समझ में आया? सो इनवर्स कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर अ मेनी इज टू 1 फंक्शन. एक और बार समझाऊं. जनरली समझ लीजिए कि अगर हमारे फंक्शन में कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि one element, that 2 elements have same image in set the other set. So 2 elements x1 and x2 are having a same image y. So when I do a reverse of it, जब मैं y को x से मैप करूंगी तो क्या होगा? y की 2 इमेजेस आने लगेगी अब x1 और x2, which means an element is not having unique image in the other set, which means the condition of a function is violated. So I can write inverse of a many is to 1 function cannot be defined. True?
इनवर्स ऑफ अ मेनी इज टू वन फंक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। और रीजन हम समझ गए कि अगर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज होगी तो जब हम इनवर्स लेने जाएंगे तो उस एक एलिमेंट की अब दो इमेजेस होने लग जाएगी, which means a function would be 1:many, which cannot be a function. A 1:many relation is not a function. So this does not applies to be a function. Okay. एक तो ये कंडीशन हुई। अब यहाँ तो एक और समस्या थी। एक समस्या तो ये थी कि A was having two images in set B or it was not having a unique image in set B. The next problem was देखिए फंक्शन की क्या कंडीशंस थी? Each element should have an image and each element should have a unique image. Okay, each element should have a image and a unique image. Unique image की कंडीशन तो many is to one फंक्शन के थ्रू वायलेट हो रही थी। अब देखिए यहाँ पे एक और समस्या थी कि B, D और E की कोई भी इमेजेस थी ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा था समझिए। जब हमारा ये फंक्शन था f of x, so B, D and E were not having, there were no elements in set A which were having B, D और E as an image. f of x set A में कोई ऐसे elements थे ही नहीं जो B, D और E से मैप्ड थे। इसीलिए जब हम इसका इनवर्स लेने गए तो हमारे पास B, D और E से कुछ मैप करने के लिए था ही नहीं। एक और बार समझाऊं, देखिए ये सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हमारे पास दो सेट्स थे x1, x2, x3, ठीक है, y1, y2, y3, y4। मैंने x1, y1, x2, y2 और x3, y3 मैप कर दिया। तो ये 1:1 फंक्शन है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। बट जब मैं इसका इनवर्स बनाने गई तो इसका इनवर्स कैसा बनेगा, देखिए लेट मी यूज अ ग्रीन कलर चॉक टू रिप्रेजेंट एन इनवर्स। जब मैं इसका इनवर्स बनाने गई तो y1 को x1 से मैप कर दिया, y2 को x2 से मैप कर दिया और y3 को x3 से मैप कर दिया, बट y4 को मैप करने के लिए कुछ है ही नहीं। इसका मतलब मेरे डोमेन में एक एलिमेंट बिना मैप किया हुआ है। There is an element which does not have an image in the next set, which means it cannot be a function because each element should be mapped and here one element is remaining unmapped. ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि जब ये फंक्शन f of x था तो इसके रेंज में सारे एलिमेंट्स मैप्ड नहीं थे, और मैं कहूँ इसकी को डोमेन में सारे एलिमेंट्स मैप नहीं थे। इसीलिए जब मैं इसे डोमेन बनाने की कोशिश करने लगी तो कुछ एलिमेंट्स अनमैप्ड रहे। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये फंक्शन नॉन सर्जेक्टिव था। अगर ये फंक्शन सर्जेक्टिव होता मतलब हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से मैप्ड होता, तो जब हम इसका इनवर्स लेने जाते तो क्या होता? एवरी एलिमेंट इन द डोमेन वुड बी हैविंग अ इमेज इन सेट बी ए। ओके, एवरी एलिमेंट इन सेट बी वुड हैविंग एन इमेज इन सेट ए। कब? जब सर्जेक्टिव होता। समझिए, अगर ये फंक्शन सर्जेक्टिव होता तो क्या होता कि इसके को डोमेन में सारे एलिमेंट्स मैप्ड होते। इसीलिए जब मैं इनवर्स लेती तो ये सारे एलिमेंट्स की करस्पॉन्डिंग एक इमेज यहाँ पे होती। सो we can say inverse of a many is to one function cannot be defined. Similarly, I will write one more thing here. Inverse of a non-surjective function cannot be defined. True? अब समझिए मेरी बात को। अगर फंक्शन many is to one होता है या 1:1 नहीं होता है तो समस्या क्या होती है? Element in set A does not have a unique image in set B. This is the problem with many is to one. और अगर सर्जेक्टिव नहीं होता है तो क्या समस्या आती है इनवर्स में? each element of set A is not mapped to an element in set B. So इन दोनों कंडीशंस के लिए जरूरी है कि फंक्शन f of इनवर्स को ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए क्या जरूरी है कि फंक्शन many is to one भी ना हो और नॉन सर्जेक्टिव भी ना हो, या फिर फंक्शन 1:1 हो और सर्जेक्टिव भी हो, which means only and only
इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन कैन बी डिफाइंड। सिर्फ इन दोनों कंडीशंस का हमें इंटरसेक्शन लेना जरूरी है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो, 1:1 भी हो और नॉन सर्जेक्टिव भी हो। ऐसा कब होगा? जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। सो ओनली एंड ओनली इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन कैन बी डिफाइंड, और यही हम यहाँ देख रहे हैं। दिस फंक्शन वॉज 1:1 एंड ऑन टू, दिस वॉज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इसी के लिए हम इसका इनवर्स डिफाइन कर पाए। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट वी हैव गॉट इज, okay, so very important condition that we have got is, in order to define inverse f inverse x of a function f of x, I hope everyone understands कि f of x के inverse को भी denote by f inverse x. So in order to define inverse of a function f of x must be bijective. f of x bijective होगा तभी हम उसका inverse define कर पाएंगे. So if we have a bijective function here, और क्योंकि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम समझते हैं कि दोनों सेट्स में सिमिलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. सिर्फ अगर n of a is equals to some number k, so number of elements in set b would be even equals to k. True. So if this is a bijective function, so its inverse would be here. So this is f of x from set A to B, and this is f inverse x from set B to true. So this is y1 y2 till yn, कुछ इस तरह से डिफाइन होगा. अब एक बात समझिए, here set A is domain of f of x and set B is range of f of x. Now in case of f inverse x, set B is the domain and set A is the range. True? So what do we understand from here? f of x में जो डोमेन है वो f इनवर्स x के लिए रेंज बनती है, और f of x में जो रेंज है वो f इनवर्स x के लिए डोमेन बन जाती है. परफेक्टली क्लियर? नाउ आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस कंडीशन कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स चाहिए तो बहुत जरूरी है कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो ही हो. ट्रू? नाउ लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शंस हियर, और आप मुझे बताइएगा कि किसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और किसका नहीं करता है. ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ फंक्शंस बना रही हूँ और आप मुझे बताइएगा कि कौन से फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है और किसका नहीं कर सकता है. ओके, सो लेट अस से दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन f of x. ठीक है, 1 2 3 4 a b c d okay. Now
ओके, अब मुझे बताइए इनमें से किस वाले फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए एक एक करके सबके इनवर्स बनाते हैं। ये देखिए फर्स्ट वाला फंक्शन, इसका इनवर्स बनाने चाहेंगे तो कैसा होगा, a:1, b:2, c:3 and c:4. Very clearly this cannot be a function, दो reasons, d is unmapped और c की दो इमेजेस है। c की दो इमेजेस क्यों है, क्योंकि ये फंक्शन many:1 है, और d unmapped क्यों बचा, because this is a non-surjective function. So inverse of this function cannot exist. True? Now let us see this function. इसका इनवर्स बनाने जाऊंगी, so 2:1, b:2, c would be mapped to 3, d would be mapped to 4 and 4d would be mapped to 5. Again this is not a function because d की दो images है, d is not having a unique image. और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये many:1 फंक्शन है, सर्जेक्टिव है बट many:1 है, इसीलिए सर्जेक्टिव था इसलिए कोई भी एलिमेंट अनमैप नहीं बचा, लेकिन क्योंकि many:1 था इसलिए फंक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि 1:many बन पाया. ओके, so this is not a inverse cannot be defined for this function. Now let us see for this function, a1, b2, c3, d4 and f5. ये भी फंक्शन क्यों नहीं हो सकता इसका इनवर्स, क्योंकि e अनमैप्ड बचा, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन था. 1:1 तो है पर नॉन सर्जेक्टिव है, फिर भी इसीलिए इसका इनवर्स नहीं डिफाइन कर पाए. सो वी शुड अंडरस्टैंड कि f इनवर्स x के एग्जिस्ट करने के लिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट अ फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव. परफेक्ट, clear till this point? Perfectly clear. Now let us next understand how to find an inverse of a function. अभी हमने सिर्फ कंडीशन समझी कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है. सो कंडीशन इज कि जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, दैट इज 1:1 होता है, और सर्जेक्टिव होता है, तो उसका इनवर्स बना सकते हैं. अब अगर फंक्शन है, तो अगर कोई फंक्शन है जो बाइजेक्टिव है, तो अब हम उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. ओके, let's see now. Let us say we have a function y equals to f of x. Perfect. और मुझे इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है. So इस फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, अभी मेरे को y को x से मैप कर, x को y से मैप करना था, अब मैं क्या करूंगी, y को x से मैप करूंगी. So x f inverse y, f inverse x would be a function of this sort. Okay, this is mapping x to y and this will be mapping y to x. Okay, so what we'll be basically doing is we will be solving this equation over here, or we will solve this to get an equation in terms of y. हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो अभी y x के टर्म्स में था, हम x को y के टर्म्स में लाएंगे. लेट अस से वी गेट अ फंक्शन g of y. From here f inverse y will be equals to g of y. So this g of y is going to be the inverse of x. I know with this it won't be clear. This is just a basic theory. Let me give you an example. With the help of that example, we'll understand. Okay. So let us state an example and understand this. So let us take a very 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 simple function which is y equals to x square plus 1. Okay. This function is bijective. ये 1:1 function है. Sorry, yeah. Is this a 1:1 function? Will this be a 1:1 function? See, y equals to x square plus 1 का ग्राफ मुझे प्लॉट करके बताइए. ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है. So right now this is not a 1:1 function. This is a many:1 function. तो इसका 1:1 फंक्शन बनाने के लिए मैं कहती हूं कि इसकी डोमेन, और I'll say x belongs to okay, मैंने क्या कहा कि इसकी डोमेन है 0 to infinity, which means this of the part of the graph is now removed.
Now this is a many is to 1 function and this is surjective even because it is covering all real numbers. True? No. उसके लिए मुझे y की भी रेंज बतानी पड़ेगी that y belongs to 1 to infinity. True? अब जाके फंक्शन सर्जेक्टिव बना. ओके, सो इनवर्स डिफाइन करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हम हमारे फंक्शन को बाइजेक्टिव बना लें. सो राइट नाउ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. अगर मैं x इज टू y को रियल नंबर्स टू रियल नंबर डिफाइन करती तो नहीं, न तो 1:1 होता और न ही सर्जेक्टिव होता. वी सॉ, हमने देखा ना इसका ग्राफ में वी कैन सी y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. दैट वाज द वन कंडीशन. और क्योंकि x एक्सिस से पैरेलल लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही थी तो ये (1:1 था. तो 1:1 बनाने के लिए पहले तो मैंने इसका नेगेटिव पार्ट ही एलिमिनेट कर दिया और सर्जेक्टिव बनाने के लिए मैंने इसकी रेंज कर दी 1:∞. ट्रू? नाउ दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन. लेट अस ट्राई टू डिफाइन एन इनवर्स. ओके, सो इसका इनवर्स होगा, लेट अस से x इक्वल्स टू f इनवर्स y. ओके, अब मुझे इसको सॉल्व करना है so that I get x in terms of y. So what I'll get? I'll get y -1 equals to x square or y -1 is equals to x. मैं प्लस माइनस भी लेती लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ कि मेरा x पॉजिटिव है, इसीलिए I'll just eliminate the negative sign and I have the plus sign. So I have x equals to √y -1. From here, अब देखिए x equals to √y -1 and x equals to f inverse y, which means f inverse y is √y -1. And domain for this function would be the range of this function 1:∞, and range of this function would be domain of this function, that is 0:∞. So this is my f inverse y. So this is the standard way how do we find an inverse of a function. Clear hai? I hope this theoretical part is clear now. What is inverse of a function? When an inverse of a function exists, and next how do we find an inverse of a function. Now let us take some illustrations and understand this concept better. Okay, कुछ 2-3 illustrations लेके inverse of a function पे अच्छी grip बनाने की कोशिश करते हैं. Okay, so I hope everyone has noted down this. I can erase the blackboard. Okay.